स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले एम्फीबॉलिक पाथवे. ओके, सो we all know that glucose is the favorite substrate for respiration, right? जो favorite substrate है for respiration, that is glucose. Okay, all carbohydrates are usually first covered into glucose before they are used for respiration, right? But other substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ग्लूकोज का तो है कि हाँ, ग्लूकोज यहाँ से ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज टूटेगा है ना, ग्लाइकोलिसिस होगा, सब कुछ फिक्स है. लेकिन जैसे दूसरे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फैट्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है ना, तो दे फॉलो सम डिफरेंट मैकेनिज्म. लाइक अगर फैट है तो फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो अब जो ग्लिसरॉल है वो क्या कर सकता है? वो ढाप के थ्रू एंटर कर सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एस्टर फॉस्फेट वाला, है ना. तो अलग अलग तरह से वो लोग एंटर करते हैं, ऐसा कह रहे हैं. नाउ fats would need to be broken down to glycerol and fatty acid first. If fatty acid were to be respired, they would first to be degraded to acetyl CoA and then enter the pathway. Glycerol जो है वो क्या करेगा? Enter the pathway after being converted to PGAL. ठीक है. The proteins would be degraded by proteases and individual amino acids after deamination, depending on their structure, would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme A. हमें पता है, देखो आप कितना ही प्रोटीन्स खा लो, प्रोटीन्स कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा. प्रोटीन्स कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा. प्रोटीन्स टूट जाएंगे किसमें? अमीनो एसिड्स में. अब अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमीनेशन करने के बाद क्रेब्स साइकिल में कहीं पे भी वो एंटर कर सकते हैं या फिर वो पायरुवेट और एसिटाइल CoA भी बना सकते हैं. Now, since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as catabolic pathway. क्योंकि बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन में चीजें टूट रही है ना, एनर्जी हो रहा है, तो दिस एनर्जी बन रहा है, तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. बट एकदम सही नहीं है. बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? We have discussed above at which points in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize is that it is this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. Hence, fatty acids would be broken down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. समझ में आया? जिस तरह से फैटी एसिड टूटा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, एंड यहां से क्या हुआ? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, वो बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम. तो कभी अगर फैट की नीड है तब एसिटाइल CoA भी तो वो प्रोसेस छोड़ के हट सकता है. समझो बात को. पायरुविक एसिड है वो चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. अब अगर एसिटाइल कोएंजाइम A की नीड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट, तो एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा? वो फैट बनाएगा रेदर देन गोइंग इनटू क्रेब्स साइकिल. अगर एनर्जी का उतना नीड नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है. समझ में आया? तो एसिटाइल कोएंजाइम A वो इन्वॉल्व किसमें हो गया? किसी चीज के सिंथेसिस में, दैट इज फैट. Hence, the respiratory pathway come into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. Okay. Similarly, during breakdown and synthesis of proteins too, respiratory intermediates form the link. Breaking down the process within the living organism is a catabolism and synthesis is एनाबॉलिज्म. जब कुछ टूट रहा है उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जब कुछ बन रहा है तो उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के टाइम पे चीजें बन रही है वो लोग को सिंथेसिस भी तो कर रही है, तो यानी कि यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी हो रहा है. So because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, ये सही है बोलना कि जो respiratory pathway वो क्या है? एम्फी मतलब डुएल, है ना, एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन एज
ओनली कैटाबॉलिक वन, जो ज्यादा करेक्ट है हम उसे एम्फीबॉलिक पाथवे बोले। सो अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सिंपल शुगर है आपके, है ना। तो देखो ग्लूकोज का सोर्स बेसिकली क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप देखो स्टार्च हम खा रहे हैं, स्टार्च किस में टूटेगा, माल्टोस, माल्टोस किसमें, ग्लूकोज में, है ना। इसके अलावा हम फ्रूट्स खाते हैं, उसमें फ्रक्टोज होता है, हम दूध ले रहे हैं उसमें गैलेक्टोज प्रेजेंट है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है शुगर का सोर्स। अब ग्लूकोज चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पाथवे चल रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, आपका पूरा ये ढाप पीजीएल बना, पायरुविक एसिड एस्टर को एक क्रैब साइकिल बना, ऐसा चला। पर अब फैट है, फैट से क्या बनता है बेटा, आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या कर सकता है, ग्लिसरॉल जो है वो ढाप बनाया, और फैटी एसिड जो है वो एस्टेल कोए के पास गया बाय बीटा ऑक्सीडेशन, बाय बीटा ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड आपके जो प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड में टूटते हैं। अब अमीनो एसिड या तो क्रैब साइकिल में भी जा सकता है ना, बहुत सारी चीजों में क्रैब साइकिल में जा सकता है, या फिर वो पायरुवेट में जा सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन mediated breakdown of different organic molecule to CO2 and water. Ultimately जो टूटेगा वो that is CO2 and water. Okay, thank you.